Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture of grade 4. This is your science lecture of grade 4. And today in this class we are going to start our new chapter. This is your science lecture and I am your science teacher Aparna Pandey from DPS Lamachor. Okay, I am your science teacher Aparna Pandey from DPS Lamachor, and today here we are going to start our new chapter. Chapter number 9. And the name of our chapter is Teeth and Digestive System. The name of our chapter is Teeth and Digestive System. So students, till now we have learned so many things related to our chapters, like how do animals survive, how do plants survive, how do plants prepare their food, what type of the food items are available for us, what type of nutrients we are getting from the food, and so many things. Okay, this all we have learned in our previous chapters. But now today we are going to start the chapter that is related to our body. The chapter that is related to our body, and its name is Teeth and Digestive System. So I hope that this chapter will create very much interest inside you, and you will all feel very happy and very curious to know about the things that is related to this chapter, because there are many interesting facts that you don't know related to your teeth, related to your digestive system, and not even only interesting facts but many things related to our body system. So that all we are going to learn in this chapter. Okay, so beta, as name suggests, teeth and digestive system. So in this chapter, first thing is that we are going to learn about our teeth and function of our digestive system. ओके हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हमारे टीथ के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है. These all things we are going to learn from this chapter. Okay, so students, let's start. Now see, beta, first I am going to introduce you today with your teeth. Why I am saying that first let me introduce today with your teeth, because in today's class we are going to discuss something related to teeth only, and a very small thing. We have to know so many things related to teeth, but in today's class first I am going to introduce you with this teeth. As you all have teeth, we all have teeth, we are using them in our daily life. Do we know its importance? No. Actually, we are not knowing its importance. If just ask to the person, just ask to the elder one at your home, the older one at your home, those who are facing teeth problem, then they will tell you that how much important teeth are. They will explain you, they will guide you that how you should protect your teeth, how you should keep your teeth in a manner that they will always help you in your life. So beta, as I have told, teeth. So what you generally know about teeth, that teeth helps you in chewing your food, right? जो हम सब एक चीज जानते हैं टीथ के बारे में, वो ये कि टीथ हमें हेल्प करते हैं फूड को च्विंग करने में. अब मुझे ये बताइए, क्या व्हेन बेबी बॉर्न इट हैज टीथ? जब बेबी बॉर्न होता है तो बॉर्न बेबी में, न्यू बॉर्न बेबी में क्या टीथ होते हैं? नो, मैंने तो नहीं देखे. अगर आपने देखे हैं then tell me, और अगर नहीं देखे हैं, और if you have not focused, so whenever you will get chance to look after any newborn baby, or to if you will get a chance to meet to any newborn baby, at that time kindly focus. You will come to know that newborn babies do not have teeth. Okay,
तो हम जो समझे सबसे पहली बात, when baby born, the newborn baby do not have any teeth. ओके, तो फिर ये टीथ आते कहाँ से हैं? सो बेटा, these teeth are hidden inside the gums. ये जो हमारे टीथ होते हैं ये गम्स के अंदर हिडन होते हैं, ठीक। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके जो टीथ होते हैं वो उसके गम्स के अंदर हिडन होते हैं। देन व्हाट हैपन्स, जब हमारा बेबी 6 मंथ के अराउंड पहुंचता है, जब कोई बेबी 6 मंथ के अराउंड हो जाता है, जब उसकी बर्थ को 6 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, then from that time slowly teeth starts coming out from gums. तो धीरे धीरे क्या होता है, टीथ गम्स से बाहर आना शुरू करते हैं। ओके, अब आप ये सोचिए, आपने देखा होगा ना जो स्मॉल बेबी होते हैं उनके टीथ का साइज बहुत स्मॉल होता है, और आप अपने टीथ का साइज देखिए, ये तो काफी बड़ा है, राइट। तो फिर ऐसा क्यों होता है? सो बेटा, after 6 months baby starts developing teeth and teeth starts coming out from gums. ओके, इतना सबको क्लियर हो गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे टीथ ग्रो होना शुरू होते हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, बहुत स्मॉल एंड देन स्लोली हमारे टीथ जो है वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन बेबी achieves the age of 2.5 years to 3 years, जब बेबी 2.5 से 3 years के बीच का हो जाता है, at that time it has total 20 teeth. तब बेबी के पास टोटल 20 teeth हो जाते हैं। कितने टीथ हो जाते हैं टोटल? 20. 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. ओके, कितने टीथ हो जाते हैं? 20 teeth हो जाते हैं। कौन कौन से? 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. Do you know what is upper jaw and what is lower jaw? This part inside the mouth, it is called upper jaw. This part inside the mouth, this is called lower jaw. Okay? तो जो हमारा बेबी 3 years तक जब ग्रो कर जाता है तो उसके अपर जॉ में भी 10 teeth हो जाते हैं और उसके लोअर जॉ में भी 10 teeth हो जाते हैं। यस, एंड अगर हम अपर जॉ के 10 teeth को और लोअर जॉ के 10 teeth को साथ काउंट कर लें तो कितने हो गए हमारे पास? 20 teeth। कितने हो गए? 20 teeth। ठीक है, टोटल कितने दांत हो गए बच्चे के पास? 20 दांत हो गए। ओके, 20 teeth, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. Now just think over it that when 10 teeth are in upper jaw and then 10 teeth are in lower jaw, then total is 20 teeth. Then why people used to say that we have 32 teeth? आपने सुना है ना कि 32 teeth होते हैं, लेकिन मैं तो आपको बता रही हूँ कि सिर्फ 20 teeth है। 10 अपर जॉ में है, 10 लोअर जॉ में है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने तो सुना होगा, आप सबने सुना होगा that we have 32 teeth. ओके, सो ऐसा इसलिए होता है बेटा बिकॉज इन स्टार्टिंग इन यंग एज टिल 6 years क्या होता है, जब तक बच्चा 6 years तक का ग्रो करता है तब तक उसके 10 teeth अपर जॉ में, 10 teeth लोअर जॉ में होते हैं एंड टोटल ये जो 20 teeth होते हैं दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। इनको हम क्या कहते हैं? इन टीथ को हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ और इनका एक नेम और होता है दैट इज कॉल्ड मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। टेम्परेरी टीथ मीन्स, टेम्परेरी माने क्या होता है? टेम्परेरी मीन्स जो चीज हमेशा नहीं रहने वाली है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी। जो चीज हमेशा नहीं रहती दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम 6 years तक बेबी के जो 20 teeth होते हैं, इन 20 teeth को हम, ये जो सेट है 20 teeth का, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, जिसे आपने जनरल लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स से सुना होगा दूध के दांत, जिसे हम क्या कहते हैं? इफ इन आवर जनरल लैंग्वेज
अब यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स, तो उसे हम यूजुअली अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दूध के दांत, मीन्स मिल्क टीथ, द एज व्हेन बेबीज यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क, कंज्यूम मिल्क, उस टाइम के जो टीथ होते हैं, दीज आर कॉल्ड द मिल्क टीथ। ओके, तो अभी तक जो हम समझ गए वो ये समझ गए कि न्यू बॉर्न बेबी के टीथ नहीं होते। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, 2.5 से 3 इयर्स का हो जाता है, उसके टीथ आना शुरू हो जाते हैं और ये टीथ उसके कब तक रहते हैं, 6 इयर्स तक रहते हैं टीथ। और इनका नंबर कितना होता है, 10 टीथ हमारे अपर जॉ में होते हैं, 10 टीथ हमारे लोअर जॉ में होते हैं और टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है वो 20 हो जाता है, 20 टीथ। एंड ये 20 टीथ को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। इन टीथ को हम क्या कह देते हैं, टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। आई होप ये आपको समझ में आया हो। Now question arises that why do we call these teeth as temporary? अब हम इन्हें टेम्परेरी क्यों कहते हैं, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि 6 इयर्स तक की एज तक तो ये टीथ रहते हैं, लेकिन देन आफ्टर 6 इयर्स धीरे धीरे ये टीथ आपके ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं। ओके, और क्या होता है, टीथ टूटता है, अपना प्लेस छोड़ देता है, ठीक है, अगेन फिर टीथ टूटता है, अपना प्लेस छोड़ देता है। तो ऐसे स्लोली स्लोली जो आपके 20 टीथ थे वो धीरे धीरे अलग अलग टाइम्स पे टूटना शुरू होते हैं और ये आपके टेम्परेरी टीथ थे, इसलिए ये ब्रेक डाउन होते हैं और धीरे धीरे फिनिश होते हैं। एंड इनके प्लेस में आपके न्यू टीथ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, इनके प्लेस में आपके न्यू टीथ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस 6 इयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी एज 6 इयर्स हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आपके ओल्ड टीथ जो मिल्क टीथ थे वो गिरना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं एंड इन इट्स प्लेस न्यू टीथ आना शुरू होता है स्लोली स्लोली। और इस प्रोसेस में क्या होता है, धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे आपके टीथ टूट के टोटल 20 सेट्स का जो हमारा टीथ है वो धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह पे न्यू टीथ आना शुरू होता है एंड दैट टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और वो टीथ हमारा परमानेंट टीथ कहलाता है, दैट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। फिर वो ऐसे नहीं टूटता, फिर वो खुद से ब्रेक डाउन नहीं होता। इफ कभी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ लग गई, उस टाइम पे जब वो टीथ टूटता है तभी वो टूटता है, आइदर वो इस तरीके से नहीं गिरता, नहीं होता। अगर आपने अपने टीथ की अच्छे से केयर नहीं करी है, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करा है, जर्म्स उसमें हो गए हैं, तो वो खराब हो जाएगा, तभी टूटेगा। आइदर उस टीथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती टिल यू अटेन द एज अबव 60 प्लस जब तक आप ना हो जाएं, फिर वो ओल्ड एज की बात होती है, जब वो धीरे 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 आपके टीथ गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, दैट इज ड्यू टू ओल्ड एज आइदर, और उन परमानेंट टीथ में कुछ भी नहीं होता। ओके, तो हमने क्या अभी तक समझा कि जो हमारे टेम्परेरी टीथ थे, जो 20 सेट ऑफ टेम्परेरी टीथ था फ्रॉम अपर जॉ एंड फ्रॉम लोअर जॉ, आफ्टर 6 ईयर वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। देन what happens in place of these teeth, new teeth starts coming out, और वो जो न्यू टीथ होते हैं, नाउ दीज आर द परमानेंट टीथ। ये कैसे टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। अब देखिए बेटा, ऐसे धीरे धीरे जब आपके न्यू परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं और कंप्लीटली 20 सेट हट जाता है, न्यू टीथ आ जाते हैं, स्लोली स्लोली आप जब ग्रो करते हैं, then the stage comes when there are total 32 teeth you have in your mouth। फिर ऐसे धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हैं, टीथ आना शुरू होते हैं, परमानेंट टीथ ग्रो होने शुरू हो जाते हैं एंड द टाइम्स कम जब आपके अपर जॉ लोअर जॉ दोनों मिला करके 32 टीथ हो जाते हैं। दीज टीथ्स आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। परमानेंट मतलब हमेशा वाले। अब इनमें ये खुद से कहीं ब्रेक डाउन नहीं होगा इनका, हाँ एक्सीडेंटली कभी कुछ हो गया तो होगा, आइदर देयर विल बी नो ब्रेक डाउन इन सच टीथ्स। ओके, अब
ये टीथ्स का जो नंबर होता है, जो परमानेंट टीथ होते हैं, इनका नंबर होता है बेटा 32। परमानेंट टीथ्स का हमारा नंबर होता है 32 एंड दीज आर 16 that grow in upper jaw and 16 that grow in lower jaw। 16 टीथ हमारे अपर जॉ में ग्रो होते हैं, 16 टीथ हमारे लोअर जॉ में ग्रो होते हैं। और अगर हम इसे टोटल काउंट कर लें 16 प्लस 16 तो हमारे 32 टीथ होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा दैट वी हैव 32 टीथ एंड दीज 32 टीथ आर कॉल्ड द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ओके, so students, in today's class we have learned very interesting thing related to teeth. Whatever I have explained, the same thing I have written on board also. Let's revise it again so that you can get much clear idea related to it. Okay, what is written here? Teeth starts coming out from gums when baby is about 6 months old. टीथ कब आना शुरू हो जाते हैं? जब बेबी हमारा 6 months old हो जाता है। When baby is of 2.5 year to 3 years old, it has 10 teeth in upper jaw and 10 teeth in lower jaw. तो जब बेबी हमारा 2.5 से 3 years के बीच का हो जाता है, उसके 10 teeth अपर जॉ में ग्रो हो जाते हैं और 10 teeth लोअर जॉ में ग्रो हो जाते हैं। टोटल 20 teeth are there। तो टोटल कितने हो गए? 20 teeth हो गए। एंड this set of teeth is called temporary teeth और milk teeth। और जो ये 20 teeth हैं, ये जो हमारे 20 teeth हैं, ये 20 teeth को हम क्या कहते हैं? ये जो सेट है, this set is called temporary teeth और milk teeth। इनका नाम क्या होता है? temporary teeth और milk teeth। अब हम इन्हें temporary teeth क्यों कहते हैं? These teeth are called temporary because it starts falling in age of 6 years। इन टीथ्स को हम टेम्परेरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब 6 इयर्स की एज हो जाती है देन स्लोली ये टीथ फॉल होना शुरू हो जाते हैं। Another set of teeth comes in place of milk teeth। अब दूसरा सेट ऑफ टीथ इस मिल्क टीथ की जगह पे आता है एंड दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ का नंबर कितना होता है? परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। 32 कैसे होते हैं? 16 टीथ इन अपर जॉ एंड 16 टीथ इन लोअर जॉ। ओके, so students, today I have introduced you with your teeth. Not everything but a simple introduction related to this. So many things we have in this chapter to learn about teeth and our digestive system that we will learn in our next video. Okay, so I hope that you all will like this video. Thank you and have a nice day ahead.